In the last lecture, we covered functions. So cell function, number functions, character functions we covered. So today we will cover uh, the remaining character functions, that is ltrim, rtrim and trim, then translate and replace. So these are the 5 character functions we left so far, and some part of the round function, I guess. Yes, sorry, instr function, some part of instr function. So how it works for the negative numbers, so that is left. And then once we cover this character function, then we will move to the date function. There are 5 date functions, which is a very easy one, so we will cover those one. Okay, so now let's start with the function, which is the trim function, ltrim and rtrim. So similar, we learned the lpad and rpad. Means padding means adding extra character, the provided extra character to the left side or right side of the string, depending on the requirement. Suppose you are using lpad, it means you are adding some character to the left side of your string. If you are using a rtrim, then it means you are adding some characters to the right side of the given string. So this is the use of lpad. Similar to the lpad, we have a trim. Trimming means we are cutting something, we are removing some character from the given string. अगर मान लो किसी ने आपको इस तरह से स्ट्रिंग दिया, नितिन NNN, ओके, या फिर इस तरह से दिया होगा NNN, इस तरह से कुछ तो भी दिया होगा. सो सपोज अगर आपको ये जो एक्स्ट्रा n है, सो नितिन के आगे एक्स्ट्रा 4 n है, 5 है, तो यू वांट टू रिमूव दिस. ओके, यू वांट टू ट्रिम दिस एक्स्ट्रा कैरेक्टर. Okay, so in that case you will use trim function. So depending on the requirement, suppose you are removing this extra character from the right side of this given string, so it means you are using a rtrim, you are doing rtrim, removing from the right side of the given string. Here there are 3 extra characters are added and you want to trim this, so you will use ltrim. So this ltrim will remove this extra character from the left side of the given string. तो ये आपकी पूरी given string है, इसके लेफ्ट साइड से अगर आप कुछ ट्रिम कर रहे हो, कुछ रिमूव कर रहे हो, इट मीन्स इट विल बी एल ट्रिम. रिमूविंग फ्रॉम द राइट साइड, इट विल बी आर ट्रिम. एंड अगेन वी हैव अ ट्रिम फंक्शन. सो रिमूविंग फ्रॉम द बोथ द साइड्स. अगर आपको दोनों भी साइड से एट वंस आपको ट्रिम करना है, सो यू कैन यूज ट्रिम ओनली, ट्रिम. सो वी हैव अ 3 फंक्शन. दीज आर अगेन 3 कैरेक्टर फंक्शंस, दैट इज एल ट्रिम, देन अगेन आर ट्रिम, and then trim. Trim is nothing but removing from the both the sides, that is left side or the right side. Okay, now this is again that it removes specified character on the left side of the given string, that is L string. So let's take example of L string, L trim. Okay, so this parameter, okay, in this L trim function, it accepts the one given string. So I will take the example. Suppose select L trim. Okay, L trim, okay, L trim, I will pass the one string. तो जो ऊपर हमने लिया था वो पास कर देते हैं, नितिन. So this is I am passing. Okay, अब I will pass the second parameter. What I want to trim, मुझे क्या रिमूव करना है from the left side. तो मैं एक ही पैरामीटर अगर उसको पास करता हूँ n, सिंपल n मैं उसको पास करता हूँ. ओके, आई एम नॉट पासिंग इट, मैं उसको कोई तीसरा पैरामीटर नहीं पास कर रहा, तो इट विल कंसिडर 1. ये इसको बाय डिफॉल्ट 1 कंसिडर करता है. आखिरी में अगर आप कुछ ने उसको नहीं कुछ पास किया, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 कंसिडर करता है खुद को. यहाँ पे ये 1 कंसिडर करेगा. ओके, तो अब हम इसको कोई थर्ड पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, तो इट विल कंसिडर 1. तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से जितने भी n है आपके, ओके, तो उसको सबको रिमूव कर देगा. एल ट्रिम फ्रॉम 12. ओके, लेट्स टेक दिस. ये देखो, उसने लेफ्ट साइड में जितने भी n थे, क्योंकि आपने उसको क्या बोला, n रिमूव करो, l ट्रिम करो लेफ्ट साइड से, तो जितने भी n आएंगे आपके लेफ्ट साइड में उन सबको वो रिमूव कर देगा. तो उसने क्या कर दिया, l ट्रिम कर दिया. यही केस अगर आप r ट्रिम करते हो, तो लेट्स टेक वन अदर एग्जांपल. r ट्रिम करते हैं, सेम स्ट्रिंग लेते हैं, सेम एग्जांपल, सेम r ट्रिम. आर ट्रिम फंक्शन, लेट्स टेक द एग्जांपल. सो इसको हम करते हैं आर ट्रिम, और इसके क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में कुछ n ऐड कर देते हैं.
तो व्हाट इट विल डू, इट विल रिमूव ऑल दी स्पेसिफाइड कैरेक्टर। तो हमने क्या स्पेसिफाई किया, हमने क्या बोला उसको, n रिमूव करो। सो वी इन्फॉर्म हिम टू रिमूव द n कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के, इस कंप्लीट स्ट्रिंग के राइट साइड से जितने भी n है उसको क्या करो, रिमूव करो। सो इफ यू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी इट विल रिमूव ऑल द n फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। तो ये देखो, ये इतने सारे जितने भी n थे उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सो दिस इज द l ट्रिम एंड दिस इज द राइट ट्रिम। सो अगेन अब आता है ट्रिम फंक्शन। सो लेट्स मूव टू ट्रिम। तो एग्जांपल वही रखते हैं, स्ट्रिंग ये ले लेते हैं क्योंकि इसके राइट में भी n है और लेफ्ट में भी n है, तो स्ट्रिंग को वो ऊपर वाली ले लेते हैं। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो व्हाट विल इट डू, इट विल रिमूव ऑल दी, सॉरी ट्रिम ओनली, ओके। सो इट विल रिमूव ऑल दी n फ्रॉम दी लेफ्ट एज वेल एज द राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। क्या बोल रही है, और मिसिंग राइट parenthesis, ओके। ट्रिम नितिन, ओके। इसका थोड़ा सिंटैक्स इनकरेक्ट है, तो इसको आपको, जैसे ये हमने उसको बताया कि लेफ्ट साइड से n रिमूव करो, राइट साइड से n रिमूव करो, तो इसको बताना पड़ेगा आपको। इसका थोड़ा सिंटैक्स डिफरेंस है, तो इसको बताना पड़ेगा ट्रिम क्या रिमूव करना है, n फ्रॉम, ओके, रिमूव n फ्रॉम, इस तरह से करना पड़ेगा। ये देखो उसने पूरे L से, सॉरी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों भी साइड से वो n को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्टिकल डिफरेंस है। अगर आप इफ यू कैन सी, इसको हमने क्या हुआ, बोला सिलेक्ट L ट्रिम गिवन स्ट्रिंग और n फ्रॉम डुअल। तो हमने इसको यहाँ पे क्या बोला कि लेफ्ट साइड से जितने भी n है उन सबको रिमूव करो। यहाँ पे ये बोला R ट्रिम में कि R साइड में जितने भी, राइट साइड में जितने भी n है इस गिवन स्ट्रिंग में उसको रिमूव कर दो। यहाँ पे हमने ट्रिम फंक्शन में क्या बोला, उसको पहले ही बताया, ट्रिम n फ्रॉम दिस गिवन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग से n को रिमूव कर दो, ट्रिम कर दो लेफ्ट एंड राइट से। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, इट रिमूव्स गिवन कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल एज द राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग आपको आपने पास किया है उसके राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से, दोनों भी साइड से उसने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। So you can use this function to remove the extra character or the character which you want to remove from left or right side. Then you can use this trim function, L trim, R trim and trim function. Is anyone has any doubt in L trim, R trim or trim function? Mayur, Pawan, Sushant, Vicky. All good. Okay, so this is the L trim, R trim and trim function. Now let's move towards the translate and replace function. Translate and replace, इसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो बिकॉज ये हम मतलब यूज करते हैं, कभी कभार यूज हो जाता है ट्रांसलेट। हाय प्रियंका, ओके। सो ट्रांसलेट फंक्शन, ओके। Hi. So translate and replace function we have. replace name explanatory है, सिर्फ थोड़ा लॉजिक में थोड़ा डिफरेंस है। ट्रांसलेट एंड रिप्लेस फंक्शन, ओके ओके। तो ये दिस ट्रांसलेट एंड रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, ट्रांसलेट यूज टू रिप्लेस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ओके। एक एग्जांपल देखते ट्रांसलेट का। पहले अगर मान लो मेरा एक स्ट्रिंग है, इंडिया करके मान लो एक स्ट्रिंग है हमारा, ओके। अब इसमें का जो है मुझे ट्रांसलेट करना है, ओके। तो मुझे ये क्या बोलता है, इट रिमूव्स द, सॉरी, इट रिप्लेसेस द गिवन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। अब इसका एग्जांपल बोले तो अगर मान लो मुझे जो आई एन है, ओके, इसमें जितने भी आई एन है, दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द सब स्ट्रिंग ऑफ दिस कंप्लीट स्ट्रिंग। इंडिया ये मेरी कंप्लीट स्ट्रिंग है और उसमें से अगर मैं आई एन निकालूंगा तो दिस इज माई सब स्ट्रिंग, ओके। ये पार्ट है आई एन इंडिया का, ओके। तो दिस इज माई सब स्ट्रिंग। अब इस सब स्ट्रिंग को क्या करना है, मुझे रिप्लेस करना है, ओके। मतलब जहां जहां मुझे, ओके, इन दोनों कैरेक्टर में से आई और एन अगर मुझे मिलता है तो मुझे रिप्लेस करना है एक्स वाई से, ओके। एक्स वाई से मुझे रिप्लेस कर देना है। तो
तो ये कैरेक्टर, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, इट रिमूव द, इट रिप्लेसेस द, और इट ट्रांसलेट द गिवन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मतलब कभी, अभी आपको देखो ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट, ओके, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, सिलेक्ट ट्रांसलेट ऑफ, अगर मैं इसको इंडिया पास करता हूँ, ओके, INDI इंडिया, अब मैं उसको बोलता हूँ ये जो मेरा IN है इसको ट्रांसलेट करो XY से, तो मैं XY पास करता हूँ, ओके, फ्रॉम डुअल। इसके आउटपुट से आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। ये देखो उसने क्या आउटपुट आया हमारा, XYXA, इसका आउटपुट क्या आया हमारा, XYXA। मैंने क्या बोला आपको कि ट्रांसलेट फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन इज यूज्ड टू रिप्लेस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ट्रांसलेट फंक्शन इज यूज्ड टू रिप्लेस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर को कैरेक्टर से रिप्लेस करता है। तो मैंने आपको उस दिन बोला था व्हाट इज कैरेक्टर, दिस सिंगल अल्फाबेट इज नथिंग बट अ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, दिस इज स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है ट्रांसलेट फंक्शन, इट रिप्लेसेस द कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर को कैरेक्टर से रिप्लेस करता है। अब ये देखो ये क्या करेगा, ट्रांसलेट किस तरह से किया होगा उसने, ये देखो ये पहले आया आई पे, इस स्ट्रिंग में सर्च किया आई है क्या, ओके आई है, तो हमने क्या बोला उसको, रिप्लेस आई बाय एक्स। तो रिप्लेस ट्रांसलेट करो आई को किससे ट्रांसलेट करो, एक्स से। तो उसने क्या किया, पहले आई को एक्स से ट्रांसलेट कर दिया, ये देखो एक्स आ गया, ओके। फिर आया एन पे, हमने क्या बोला, जो एन है उसको ट्रांसलेट करो, किससे ट्रांसलेट करो, वाई से करो। तो उसने जहां पे उसको एन मिला उसको उसने क्या किया, वाई से ट्रांसलेट किया, ओके। फिर आगे आया डी, तो डी को तो कुछ करना है ही नहीं। फिर से उसको आई मिला यहाँ पे, तो आई को हमने किससे ट्रांसलेट करने के लिए बोला, एक्स से। तो जहां पे भी उसको आई मिलेगा तो वो आई को एक्स से ट्रांसलेट कर देगा, कर दिया। फिर ए मिला तो ए एज इट इज रखा। तो उसने क्या किया, जहां जहां उसको आई मिला उसको एक्स से ट्रांसलेट कर दिया, जहां जहां उसको इस गिवन स्ट्रिंग में एन मिलेगा उसको वो क्या कर देगा, वाई से क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। अगर मान लो मैं इसमें फिर से यहाँ पे कुछ एन डाल देता हूँ, आई डालता हूँ, एन 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 डाल देता हूँ, आई डाल देता हूँ। अब ये देखो किस तरह हमने क्या बोला, इट ट्रांसलेट फंक्शन ट्रांसलेट द गिवन स्ट्रिंग्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है। अगर मान लो आपने इसको क्या बोला, आई एन, जहां आई मिलेगा उसको हमने क्या बोला, एक्स से ट्रांसलेट कर दो। जहां वाई मिलेगा इस स्ट्रिंग में उसको, जहां पे एन मिलेगा उसको वाई से ट्रांसलेट कर दो। तो अभी अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे इस क्वेरी को आप, ओके, ये देखो जहां जहां उसको आई मिला उसको उसने किससे रिप्लेस ट्रांसलेट कर दिया, एक्स से कर दिया। और जहां जहां पे उसको एन मिलेगा उसको किससे ट्रांसलेट करेगा, वो वाई से करेगा। ये देखो इतने सारे यहाँ पे 3 एन थे, उसको उसने किससे ट्रांसलेट कर दिया, वाई से ट्रांसलेट कर दिया। ये देखो वाई वाई 3 वाई आ गए। आखिर में आया था उसको किससे ट्रांसलेट कर दिया, एक्स से ट्रांसलेट कर दिया। सो इट ट्रांसलेट द गिवन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जो कैरेक्टर आप उसको ट्रांसलेट कर, जिससे ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहे हो उससे वो ट्रांसलेट कर देगा। अगर मान लो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सिर्फ मुझे इस गिवन स्ट्रिंग में जहां जहां पे उसको एन मिलेगा उसको एक्स से ट्रांसलेट कर दो, लेट्स एग्जीक्यूट। तो ये देखो उसने जहां जहां पे उसको आई मिला, एन मिला, उसको एक्स से भर दिया, एक्स से ट्रांसलेट कर दिया। ये देखो जहां जहां पे भी एन था उस सभी जगह उसने एक्स डाल दिया, एक्स को ट्रांसलेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एन को हटा देते हैं, बोलते आई को एक्स से ट्रांसलेट कर दो और फिर से एग्जीक्यूट कर दो। जहां जहां पे आई मिलेगा उसमें एक्स डाल देगा। ये देखो शुरुआत में आय है, इधर आय है, चार जगह आय है, तो 4 टाइम्स उसने क्या, 4 टाइम्स उसने क्या कर दिया, एक्स डाल दिया। नॉट नेसेसरी आपको अब यहाँ पे बोल सकते हो कि आप उसको 1 से रिप्लेस कर दो, 1 से ट्रांसलेट कर दो, तो 1 डाल देगा। तो उसने क्या किया, आई की जगह 1 डाल दिया। सो दिस इज द ट्रांसलेट फंक्शन। सो ट्रांसलेट फंक्शन ट्रांसलेट द गिवन स्ट्रिंग्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो जो भी गिवन स्ट्रिंग है, तो ये आपने जो स्ट्रिंग पास की है उसमें के जो भी कैरेक्टर है उसको कैरेक्टर से क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रांसलेट फंक्शन। ओके, नाउ इट्स, अभी इसके अलावा एक दूसरा फंक्शन है रिप्लेस। ओके, रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, इट रिप्लेस द गिवन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और कैरेक्टर बाय स्ट्रिंग
देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इट रिप्लेसेस द गिवन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। एक तो ये कैरेक्टर को कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकता है, ओके, कैरेक्टर से कैरेक्टर को कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकता है, या फिर कैरेक्टर को ये स्ट्रिंग से भी रिप्लेस कर सकता है, ओके, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर सकता है या फिर कैरेक्टर बाय स्ट्रिंग कर सकता है। अब इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो सेम एग्जांपल लेते हैं, सिलेक्ट रिप्लेस ऑफ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, INDIA इंडिया। अब उसको हम बोलते हैं IN, दिस इज द स्ट्रिंग, ओके, IN दिस इज द स्ट्रिंग। हम उसको बोलते हैं जहां जहां पे IN मिलेगा, ये स्ट्रिंग मिलेगा, IN वाला स्ट्रिंग मिलेगा, तो उसको आप किससे रिप्लेस कर दो, XY से रिप्लेस कर दो, ओके, फ्रॉम डुअल। अगर एग्जीक्यूट करते हो ये देखो, जहां जहां पे उसको ये स्ट्रिंग मिलेगी, IN जहां जहां पे मिलेगा उसके अंदर वो क्या डाल देगा, उसको किससे रिप्लेस कर देगा, XY से। ये देखो, तो उसको पहला ही ये मिला IN, तो उसकी जगह उसने क्या डाल दिया, XY डाल दिया। फिर से IN है ही नहीं, तो उसने किसी को रिप्लेस नहीं किया। सो दिस इज, अब इसमें क्या किया, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग कर दिया। ये जो स्ट्रिंग थी सब स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया, ओके, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग। इट, जो रिप्लेस फंक्शन का फंडा क्या है, इट रिप्लेसेस द गिवन कैरेक्टर बाय स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग है, ओके, गिवन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर, सॉरी, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग। अगर मान लो मैं इसको अगर बोलता हूँ, यहाँ पे एक कैरेक्टर ही पास करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ जहां जहां पे I मिलेगा उस सभी को रिप्लेस कर दो XY से। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, ये देखो, जहां जहां पे उसको I मिलेगा उसको वो क्या कर रहा है, XY से रिप्लेस कर दे रहा है। तो पहला I मिला, उसकी जगह XY डाल दिया, फिर से उसको यहाँ पे I मिला, उससे XY डाल दिया। तो इसमें क्या किया उसने, क्या कैरेक्टर को किससे रिप्लेस कर दिया, स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज द रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन ऑलवेज रिप्लेसेस द कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर को कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकता है, या फिर कैरेक्टर को स्ट्रिंग से भी रिप्लेस कर सकता है, या फिर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकता है। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग मतलब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है, ये जो IN एक स्ट्रिंग है, मैंने बोला इसको इस XY स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कैरेक्टर डाला हूं, कैरेक्टर को मैंने बोला इस स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सेकंड सिनेरियो, कैरेक्टर बाय स्ट्रिंग, तो ये हमने देखा। और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी देख लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ जहां जहां पे I मिलेगा उसको X से रिप्लेस कर दो, लेट्स चेक। ये देखो, जहां जहां पे उसको I मिला उसको उसने X से रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी ट्रांसलेट एंड रिप्लेस। तो ये पूछता है इंटरव्यू में, बीइंग अ फ्रेशर और कभी कभार इंटरमीडिएट लेवल के बंदों को पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेट एंड द रिप्लेस फंक्शन। तो आपको ये बताना है उसको कि ट्रांसलेट फंक्शन ऑलवेज ट्रांसलेट द गिवन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर को कैरेक्टर से ही रिप्लेस करता है। वेयर इन रिप्लेस फंक्शन रिप्लेसेस द गिवन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और गिवन कैरेक्टर बाय स्ट्रिंग और गिवन स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग। तो ये फंडा है आपके रिप्लेस फंक्शन का। तो ये प्रैक्टिस करो आप, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा आपको। इट्स वेरी सिंपल, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाउ इट्स वर्किंग। तो ये फंडा है। कीप इन माइंड ये जो फंक्शन है दोनों भी, ये आपके क्या यूज करते हैं, इट्स एक्सेप्टिंग 3 पैरामीटर्स। ये आपके 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या स्ट्रिंग आपको मिल रही है, उस स्ट्रिंग में से जो किसको आपको ट्रांसलेट करना है, रिप्लेस करना है, और किससे ट्रांसलेट करना है और रिप्लेस करना है, ये 3 पूछ रहा है आपको। सो दिस इज द ट्रांसलेट एंड द रिप्लेस फंक्शन। किसी को नहीं समझा, लेट मी नो, हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ओके गाइज, एनीवन हैज एनी डाउट, लेट मी नो। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, चलो मैं ही इसको ले लेता हूं। सिलेक्ट ट्रांसलेट ऑफ, ओके, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं ABCDEF, ओके, ये स्ट्रिंग पास कर दिया। उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि FCDB, ओके, इसको रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करना है, 1 2 3 4, ओके।
फ्रॉम 12। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक? हमने इसको क्या बोला? ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहे हैं। इट मीन्स वी विल ट्रांसलेट द गिवन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। हम जो भी कैरेक्टर जो हमको दिए हैं इस गिवन स्ट्रिंग में से उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी? हमने क्या बोल रहे हैं भाई, इस स्ट्रिंग में जहां पे भी देखो एफ मिलेगा, ओके, उसको किससे रिप्लेस ट्रांसलेट करो? एन से ट्रांसलेट कर दो। जहां पे भी तेरे को सी मिलेगा उसको किससे ट्रांसलेट कर दो? 2 से करो। जहां पे भी डी मिलेगा उसको किससे ट्रांसलेट कर दो? 3 से ट्रांसलेट कर दो। जहां पे भी बी मिलेगा उसको 4 से ट्रांसलेट करो। तो इन द गिवन स्ट्रिंग जहां जहां पे भी ये मिलेगा कैरेक्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, तो उसको 1 2 3 4 से वो रिप्लेस कर देगा। लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, ये देखो, उसको हमने ए को तो हमें ट्रांसलेट नहीं करना था, हमको एफ करना था। तो पहला एफ कहाँ पे मिलेगा? ओके, यहाँ पे देखो एफ को, तो उसने एफ को किससे ट्रांसलेट कर दिया? 1 से। ये देखो लास्ट में 1 ऐड हो गया उसके गिवन स्ट्रिंग के। हमने उसको बोला था कि भाई सी मिलेगा तो उसको क्या करो? 2 से कर दो। तो जहां पे देखो थर्ड नंबर पे 2 आ गया। फिर हमने उसको बोला डी अगर मिलता है तो 3 डालो, तो 3 हो गया। और बी आया तो 4 से रिप्लेस करो, ट्रांसलेट कर दो, ये 4 आ गया। सो इसने क्या किया? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको किसने क्या किया? ट्रांसलेट कर दिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप कि आपको ये ट्रांसलेट का फंडा क्लियर हुआ होगा। ओके, अभी देखो, जैसे कि मैंने तो इसको बोला 4 कैरेक्टर मैंने उसको दिए, ये स्ट्रिंग पास किया, और सेम मैंने कैरेक्टर उसको भी दूसरे स्ट्रिंग में जिससे मुझे ट्रांसलेट करना वो दिया। व्हाट इफ कि मैं अगर इसको बोलता ही नहीं, मैंने पहले क्या कर देता हूँ, इसको ये बोल देता हूँ, ये 4 को अगर बी है तो बी के लिए तो मैं कोई कैरेक्टर दिया ही नहीं, तो क्या होगा? ये देखो, बी के लिए मैंने कुछ दिया नहीं, इसलिए क्या कर देगा वो? बी को इस गिवन स्ट्रिंग से हटा देगा। दिस इज द फंडा। हमने क्या बोला? बी एफ को ट्रांसलेट करो 1 से, सी को ट्रांसलेट करो 2 से, और डी को ट्रांसलेट करो 3 से। बी को किससे ट्रांसलेट करना है वो दिया ही नहीं, तो इसलिए क्या उसने क्या किया? ये जो गिवन स्ट्रिंग है जो हमने एक्चुअल में उसको पास की थी उसमें से वो बी को हटा देगा, वो रिमूव कर देगा उस बी को। तो अगर आपको किसी ने बोला कि व्हाट आई एम पासिंग द लेस कैरेक्टर टू बी ट्रांसलेट, तो उस केस में क्या होगा? तो आप उसको बोलोगे कि जिस किसी कैरेक्टर को किसी दूसरे ट्रांसलेट करने के लिए वैल्यू नहीं दी, तो जो गिवन कैरेक्टर है वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग हमको पास होगी उससे वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अब बी है ही नहीं कर पे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5। मैंने उसको क्या बोल रहा हूँ? फिर बी को ट्रांसलेट करो 5 से, तो अभी उसमें 5 दिख जाएगा आपको। ये देखो 5 आ गया, ए के बाद 5। ओके, सो दिस इज द ट्रांसलेट फंक्शन। ओके, मयूर, अरुण, पवन, विक्की, ये पूछते हैं इंटरव्यू में, और आपको भी जब आप रिक्वायरमेंट कभी आता है आपको कि मुझे इस तरह का डेटा चाहिए, उस तरह का डेटा चाहिए, तो फॉर द लॉजिक बिल्डिंग पर्पज यू कैन यूज दिस ट्रांसलेट फंक्शन। आप उस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। दिस इज अ वेरी सिंपल वन, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द रिप्लेस। और रिप्लेस का थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। सेलेक्ट रिप्लेस। ओके, रिप्लेस ऑफ, मान लो ऊपर का एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, उसको क्या बोलते हैं भाई? जहां पे भी तेरे को सी डी मिलेगा, ओके, सी डी मिलेगा, उसको किससे रिप्लेस करो? 0 0 से रिप्लेस कर दो। ओके, फ्रॉम 12। लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, देखो उसको सी डी मिला यहाँ पे इस गिवन स्ट्रिंग में, तो उसमें उसकी जगह क्या डाल दिया? 0 0 डाल दिया। अगर मैं उसको बोलता भाई जहां पे भी सी डी मिलेगा उसको सिर्फ 0 से रिप्लेस कर दो, ये देखो 0 से रिप्लेस कर दिया उसने। ओके, तो दिस इज हाउ दिस रिप्लेस फंक्शन वर्क्स। ओके, अगर मान लो मैं इसको ये पास ही नहीं कर रहा हूँ, थर्ड पैरामीटर उसको दे ही नहीं रहा हूँ, मैं उसको बोल ही नहीं रहा हूँ इस सीडी को किससे रिप्लेस करो, क्या होता है देखो, तो वो सीडी को हटा देगा। इट मीन्स हम अगर उसको बता दें नहीं कि इस सीडी को किससे रिप्लेस करना है, तो वो उस सीडी को फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग हटा देगा, उसको रिमूव कर देगा। तो उसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। सो दिस इज द फंडा, ये लॉजिक है इसका। तो ये फंक्शनैलिटी इन दो फंक्शन की, ट्रांसलेट एंड रिप्लेस की। तो कीप इन माइंड कि रिप्लेस फंक्शन, सॉरी ट्रांसलेट फंक्शन कब रिमूव करता है फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, जो कुछ भी रिमूव वो हमने पैरामीटर पास नहीं किया, तो
और रिप्लेस से कब वो रिमूव करता है फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से कब रिमूव करता है जो कुछ पैरामीटर रिप्लेस करना है वो। तो अगर हमने थर्ड पैरामीटर नहीं पास किया कि इसको किससे रिमूव करना है, तो इस जो हमने पास किया उसको, जो बोला हमने जिसको रिप्लेस करना है, उसी को क्या कर देगा, वो हटा देगा इस स्ट्रिंग से। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेट एंड द रिप्लेस फंक्शन। दिस आर द वेरी सिंपल फंक्शन। एक थर्ड एक और एक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, कॉनकैट। कॉनकैट जनरली वी डोंट यूज दिस फंक्शन मच, हम ज़्यादा यूज नहीं करते इस फंक्शन को, बट अगेन वी हैव दिस फंक्शन सो वी कैन यूज इट। तो कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, वी यूज इट टू कॉनकैट द टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए। जैसे आपके पास वेल है और एक कम करके दो स्ट्रिंग है आपके पास, आपको इसको कंबाइन करना है, तो आपको क्या चाहिए, आउटपुट वेलकम चाहिए। तो इफ यू वांट टू कंबाइन द टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को, दो सब स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो अभी देखो ये जो स्ट्रिंग है दो, ये किसकी सब स्ट्रिंग है, आपका एक वेलकम करके कीवर्ड है, वेलकम करके एक वर्ड है। तो ये वेलकम में से ये वेल बाहर निकला और कम निकला, मीन्स दिस टू स्ट्रिंग्स आर द सब स्ट्रिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग। ये कंप्लीट स्ट्रिंग की है तो क्या है, सब स्ट्रिंग है। तो दो सब स्ट्रिंग को अगर आपको कंबाइन करना है तो इन दैट केस यू कैन यूज द कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। एक्चुअली दिस कॉनकैट इज नथिंग बट कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन इज नथिंग बट कंबाइनिंग दी गिवन स्ट्रिंग। तो जो भी स्ट्रिंग है आप उसको कंबाइन कर सकते हो। तो सिलेक्ट कॉनकैट, अगर मैं इसको देता हूं कॉनकैट, कॉनकैट ओके, सिलेक्ट कॉनकैट ऑफ व्हाट, मैं स्ट्रिंग पास करूंगा उसको, तो मैं बोलूंगा ओके पहला वेल पास करूंगा और उसको मैं सेकंड पैरामीटर पास कर रहा हूं कम। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इट विल कंबाइन द रिजल्ट, ये जो कंबाइन करेगा वो जो भी दोनों भी सब स्ट्रिंग है उसको, तो ये आपको वेलकम रिटर्न करेगा। तो ये देखो उसने क्या किया, हमने दो स्ट्रिंग पास की थी सब स्ट्रिंग, तो उसको उसने कंबाइन कर दिया और वेलकम बना दिया। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। शॉर्टली वी कैन कॉल इट एज अ कॉनकैट। दिस कॉनकैट इज नथिंग बट अ कॉनकैटिनेशन, मीन्स कंबाइनिंग द कीवर्ड्स, combining the strings. So this is how we covered the character functions. So only we left with the what function we left with, इसके एग्जाम्पल हमारे बाकी है, जिससे हमें पोजीशन रिटर्न होती है। कौन सा फंक्शन है वो, जिससे हमें गिवन कैरेक्टर स्ट्रिंग की क्या होता है, पोजीशन रिटर्न करता है। वो कौन सा फंक्शन है उसका, instr फंक्शन है। इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज द यूज ऑफ instr फंक्शन। बीइंग अ फ्रेशर अगर आप जाओगे तो आपको पूछेगा व्हाट इज instr फंक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तो अगर आपको पूछा instr फंक्शन क्या करता है, तो यू हैव टू से कि instr इज अ कैरेक्टर फंक्शन, एक कैरेक्टर फंक्शन है एंड इट्स पर्पस एंड इट्स फंक्शन इज टू रिटर्न ए पोजीशन ऑफ अ गिवन कैरेक्टर और अ गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग आपको पास करेंगे उसमें से किसी भी अगर आपको कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग का पोजीशन पता करना है तो यू कैन यूज अ फंक्शन instr फंक्शन। तो वो आपको एक नंबर डेटा रिटर्न करना है। ठीक है, सी का पोजीशन, अगर मैं पूछूं इस स्ट्रिंग में सी का पोजीशन कितना नंबर का है, तो अगर आप instr फंक्शन यूज करोगे तो आपको इसका एक आउटपुट क्या रिटर्न आएगा, 4 रिटर्न आएगा, बिकॉज इस गिवन स्ट्रिंग में सी का पोजीशन कितने नंबर पे है, 4th पोजीशन पे, तो इट विल रिटर्न 4। तो दैट इज instr फंक्शन। तो instr फंक्शन का हमने पॉजिटिव नंबर्स के लिए देखा था, नेगेटिव नंबर्स के लिए हमने उसका थोड़ा देखा नहीं एग्जांपल, तो वी विल डेफिनेटली टेक द एग्जांपल ऑफ इट, बट फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट go through this all in number function, character functions. Okay, so now again let's move towards the date function. So we have some date functions. Date function है okay, अभी ये जो हमने character function पढ़े तो it's only works on अल्फा न्यूमेरिक डेटा, मतलब कैरेक्टर डेटा या फिर अल्फा न्यूमेरिक डेटा जिसपे कैरेक्टर हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, तो उस पर ये वर्क करते हैं these character functions. Now let's move toward the date functions. Now what is date function? डेट है ओके, डेट इज नथिंग, मतलब हमारी जो तारीख होती है उस पर ये काम करते हैं। सो डेट फंक्शन ऑलवेज वर्क्स ऑन अ डेट डेटा टाइप, डेट टाइप के डेटा पे काम करता है डेट फंक्शंस। ओके, सो दिस डेट फंक्शन ऑलवेज वर्क्स ऑन डेट टाइप ऑफ डेटा। डेट टाइप का अगर डेटा है तो उसी में ये काम करते हैं। ओके, सो नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन अवेलेबल इन ओरेकल फॉर द डेट। डेट के कितने टाइप्स के फंक्शन है हमारे पास, तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक फंक्शन है सिस डेट। ओके, सिस डेट है, उसके बाद है एड मंथ्स,
एड मंथ्स करके एक फंक्शन है. Similarly, we have a last day function we have a next day function as well, next day. Okay, next day, and then we have a last function, months between, we have a months between function as well. Okay, so these are the 5 date function we have. So by using these date function we can वर्क ऑन अ डेट टाइप ऑफ डेटा. तो डेट टाइप का अगर डेटा है तो उस पर आप वर्क कर सकते हो. अभी ओरेकल का जो बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट है, देखो हर एक लैंग्वेज का एक बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है. इफ यू कैन सी माई कंप्यूटर्स डेट, सिस्टम डेट, इट्स 27/8/2022. इसमें इट इज अ डेट फॉर्मेट, ये किसी तो भी फॉर्मेट में है. ओके, एक फॉर्मेट में. कभी कभी आप लिखते हो ना कि बाबा 27, आज अगर ये एक फॉर्मेट में लिखते 28/08/2022, इस एक फॉर्मेट में आप इस तरह से लिख सकते हो. कोई इस तरह से लिखता है 27 AUG, ओके 2022, ये एक फॉर्मेट बन गया. समटाइम्स यू मे राइट दिस टाइप ऑफ डेटा 27/08/022. दिस इज अगेन अ फॉर्मेट. इंस्टेड ऑफ हाइफन यू यूज this forward slash. I'm sorry. So this is again a date format. So what date format exactly Oracle follows? तो Oracle का खुद का एक डेट फॉर्मेट है, उसी में वो उसको समझता है कि ये डेट है. उस फॉर्मेट में अगर वो डेट नहीं आया, डेट का डेटा आया नहीं, तो उसको समझेगा नहीं कि बाबा ये क्या पास कर रहा है, क्या वैल्यू पास कर रहा है. तो अगर Oracle के डेट फॉर्मेट में डेट नहीं आया, अदर देन Oracle डेट फॉर्मेट, अगर उसको डेट आप पास कर रहे हो तो उसको समझ भी नहीं आएगा. इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. हमारा एक एम्प्लॉयज टेबल है. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज. I don't know how many of you solved the assignment number 2. There I have given some example and I had asked you to insert the data into the date, hire date as well. As per my understanding and whatever I am remembering, तो मैंने उसमें दिया था. तो उसमें आपको मैं I don't know how many of you inserted data into a hire date field. तो hire date में मैंने आपको डेटा इंसर्ट करने के लिए बोला था, तो नो प्रॉब्लम. तो अभी हम इंसर्ट करके देखते हैं. इंसर्ट ओके इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज. नाउ लेट्स ट्राई टू इंसर्ट द डेटा. हम हायर डेट में, अभी बाकी तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हमें इंसर्ट करने में. जब हायर डेट में हम डालेंगे तब इंसर्ट आएगा प्रॉब्लम. तो नाउ लेट्स इंसर्ट एम्प्लॉय नंबर 10, ओके अभी कितना है 120 है ना, 121 डाल देते हैं. 121 एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं. ओके, मेरा ही नाम डाल देता हूँ, नितिन. ओके ओके देन अगेन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल आईडी डाल देते हैं. ओके अगेन ईमेल डाला, फोन नंबर. ओके फोन नंबर लेस फोन. ओके फोन नंबर इज अ नंबर टाइप ऑफ डेटा. सो अगेन हेयर कुछ डाल देते हैं इसी में से, उनका जैसा टाइप है पहले से. 5.127.123 कर देता हूँ. 123.1234 इसमें 5 कर देता हूँ. ओके ये डेट फॉर्मेट डाल दिया. अगेन लेस हायर डेट. अभी मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, हायर डेट डाल रहा हूँ ना, तो एक काम करते हैं, मैं डाल देता हूँ आज का डेट 27. उसको बोलता हूँ आज का 2008 है, और उसमें मैं डाल देता हूँ 2022. ये डाल दिया. ओके अगर हम डेट पास करें तो मैंने आपको बोला था कि डेट एंड वर्कर जब भी डेटा होता है, कैरेक्टर डेटा, तो उसको सिंगल कोड में डालना है. ओके डाल दिया. हायर डेट भी डाल दिया. ओके अगेन माई जॉब आईडी विल बी ओके. सो ITPRG डाल देते हैं, या भी PU एस्टीमैन डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम. लास्ट में जो है वही डाल देते हैं, एस्टीमैन. ओके ये डाल दिया. अगेन लेट्स पुट व्हाट इज सैलरी. ओके सैलरी में मैं डाल देता हूँ कुछ भी 12,000 रुपये डाल देते हैं, 12,000. ओके अगेन कमीशन लेट्स कीप इट एज नल, तो मैं कमीशन नल डाल देता हूँ. ओके मैनेजर किसके अंडर वर्क करेगा, तो 100 मैनेजर रहेगा, नो प्रॉब्लम. डिपार्टमेंट आईडी, तो डिपार्टमेंट आईडी 50 में चला जाएगा ये बंदा. ओके सो दिस इज द वैल्यूज आई एम जस्ट गोइंग टू इंसर्ट. ओके इसमें कुछ अभी प्रॉब्लम है, आई गेस इसका वैरक्यार होगा, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. तो इसका एक और सिंगल कोड में डाल के देखते थे. डेटा टाइप इसका चेंज हो गया होगा कोई. हाँ ओके फाइन. नाउ लेट्स इंसर्ट. देखो नॉट अ वैलिड मंथ, इसमें इसको डेट में प्रॉब्लम आ गया. उसको समझा ही नहीं ये डेट क्या है. क्यों नहीं समझा, बिकॉज ओरेकल का जो बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट है वो है DD
MONYY। तो इस डेट फॉर्मेट में जब तक कि आप उसको डेटा नहीं दोगे तो उसको समझेगा नहीं कि पापा ये क्या है, उसको समझेगा नहीं ये वैल्यू, वॉट एवर वैल्यू आई एम पासिंग ये क्या है, उसको नहीं समझा ये डेट है कि क्या भेज रहा है, उसको नहीं समझेगा। जब तक कि आप उसको ये डेट फॉर्मेट में नहीं बताओगे तब तक कि उसको नहीं समझेगा। तो मुझे आपको ये बताना था कि ओरेकल का जो बाय डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है ये होता है इसी फॉर्मेट में। आपको ओरेकल के अंदर जब भी आप कोई डेट इंसर्ट करोगे किसी कॉलम में तो आप इसी फॉर्मेट में डालोगे। बट व्हाट इफ कि आपको इसी फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट करना है, आप बोलोगे नहीं भाई वो ओरेकल का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो वट एवर डेटा विल पास इट हैज़ टू टेक, इट हैज़ टू इंसर्ट, उसने इंसर्ट कर देना चाहिए। तो फिर इस केस में आप कर सकते हो, यू कैन अचीव दिस, ये भी आप कर सकते हो। बट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं पास कर रहा हूँ ना ये डेट है। तो वो कैसे बताओगे आप उसको, तो वो आपको फिर इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये जो डेटा आप उसको पास कर रहे हो इसमें थोड़ा चेंज करना होगा। फिर इसमें आता है रोल टू कैर और टू डेट का, दो फंक्शन है हमारे पास और दो कीवर्ड है टू कैर एंड टू डेट। तो उसका यूज करके हम उसको बताएंगे कि भाई मैं जो पास कर रहा हूँ ना ये डेट है, तो इंसर्ट डेट। तो फिर वो बोलेगा ओके नाउ आई अंडरस्टूड दिस इज डेट, कि आपने मुझे बताया, थैंक यू सो मच टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू आर पासिंग इज अ डेट, जो वैल्यूज आप पास कर रहे हो वो डेट है। तो बोलेगा ओके नाउ अंडरस्टूड, अभी मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो वो कैसे करेंगे हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट कीप इन माइंड द बाय डिफॉल्ट ओरेकल डेट फॉर्मेट इज DDMONYY। तो ये ओरेकल का डेट फॉर्मेट है, जस्ट कीप इन माइंड। ओके नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शंस। अभी डेट फंक्शंस पे हम मूव करता है। सो व्हाट इज सिसडेट? फर्स्ट फंक्शन सिसडेट। सिसडेट इज नथिंग बट अ सिस्टम डेट। ओके दिस इज सिस्टम डेट, सिस्टम का जो करंट डेट होगा सिसडेट, तो वो रिटर्न करेगा आपको। ये दिस फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है सिसडेट फंक्शन, इट रिटर्न्स द सिस्टम करंट डेट। ओके सिस्टम का करंट डेट है वो रिटर्न करेगा। तो अगर आप ये यूज करोगे सिलेक्ट सिसडेट फ्रॉम 12, ओके तो ये सिस्टम का आज का जो भी डेट होगा वो रिटर्न करेगा। ये देखो अलॉन्ग विद द टाइम स्टैम्प, अलॉन्ग विद द टाइम। ये देखो अभी उसने क्या रिटर्न किया, 27/8/2022 ये रिटर्न किया अलॉन्ग विद द टाइम। ये देखो किधर गया मेरा, हाँ ये मेरा टाइम है 27, और अभी इसमें टाइम नहीं दिख रहा है कौन सा पार्ट, 1:44। तो जब हमने ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया था 1:43 49 सेकेंड्स हुए थे, तो वो उसने टाइम रिटर्न किया। सो ऑलवेज कीप इन माइंड सिसडेट फंक्शन रिटर्न्स द सिस्टम डेट अलॉन्ग विद द टाइम। सिस्टम का डेट उसके साथ उसका टाइम भी, जो जब आपने वो फंक्शन एग्जीक्यूट किया था तब का वो टाइम वो आपको रिटर्न करेगा। अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी का टाइम रिटर्न करेगा। ये देखो 27/8/2022 अभी का टाइम 1:44 सो दिस इज द सिसडेट फंक्शन विच इज अ सिंपल वन, वेरी सिंपल। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज सिसडेट, तो सिस्टम इज अ डेट फंक्शन विच वी यूज टू कैप्चर द करंट सिस्टम डेट अलॉन्ग विद द टाइम। सिस्टम का करंट जो भी डेट है अलॉन्ग विद उसके टाइम जो भी करंट टाइम है उसका वो रिटर्न करेगा। सो दिस इज द सिसडेट फंक्शन which is a simple one. Okay now let's move to the next function, next date function, add months. Okay add months. Okay so what is the use of, what is the purpose of this add month function? So it returns so it used to add or remove number of months from the specified date based on the second parameter. Okay now this date function, this add months function एक्सेप्ट 2 पैरामीटर, इसके पास 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। ये पहला तो एक डेट पास करेंगे हम उसको, और सेकंड पैरामीटर पास करेंगे कि भाई इस डेट में से इतने महीने इसमें ऐड करो, 2 महीने ऐड करो, या फिर 2 महीने माइनस करो, 10 महीने ऐड करो, या फिर 10 महीने माइनस करो, और फिर क्या रिजल्ट आएगा वो मुझे रिटर्न करो। अगर मैंने आपको बोला कि आज की डेट है 27, इसमें 2 मंथ्स ऐड करो और फिर क्या डेट आएगा रिटर्न करो, तो आप क्या बोलोगे, बुक आज की 27 अगस्त 2022 है, 2 महीने ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 27 अक्टूबर 2022 आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, राइट। अगर मैं बोलूँगा 2 महीने माइनस करो तो आप क्या बोलोगे कि अगस्त चालू है, 2 महीने माइनस करने के लिए बोलता 27 जून 2022 रिटर्न हो जाएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस एड मंथ फंक्शन। सो एड मंथ फंक्शन का यूज क्या है, इट एड्स और रिमूव्स द गिवन मंथ फ्रॉम द गिवन डेट। जो भी डेट उसको आप पास करोगे उसमें से वो क्या करेगा, उतने मंथ्स या फिर उसमें उतने मंथ्स माइनस करेगा या फिर ऐड कर देगा। अब ये माइनस कब करेगा और ऐड कब करेगा, तो देखो अगर एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आज की मान लो 27 है, सिस डेट है, तो सिलेक्ट ऐड मंथ्स।
एड मंथ्स, ओके, आज की डेट उसको पास कर देते, तो मैं इसको सिस डेट पास कर देता हूँ, सिस डेट, तो ये आज की डेट पास कर रहा हूँ। एड मंथ्स सिस डेट टू फ्रॉम डुअल, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज की डेट में क्या करो, 2 महीने ऐड कर दो। एड मंथ्स बोला मैंने बोला आई एम पासिंग पॉजिटिव वैल्यू, मैं उसको पॉजिटिव वैल्यू पास कर रहा हूँ। इट मीन्स वी हैव टू ऐड द नंबर मंथ्स टू द गिवन डेट। ये जो गिवन डेट है, ये मैंने जो डेट पास की है उसमें मुझे 2 महीने ऐड करने हैं, बिकॉज आई एम पासिंग अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या कर देगा, ये देखो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसने क्या किया, 27 अक्टूबर और वो टाइम अलॉन्ग विद द टाइम उसने क्या कर दिया, हमें रिटर्न किया। अब अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो अगर माइनस नेगेटिव वैल्यू भेजूंगा तो गिवन डेट में से वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो -2 आपने दिया उसको उतने महीने को वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये देखो 27 जून 2022, तो अलॉन्ग विद द टाइम जो भी कुछ टाइम रहेगा तब का, तो ये उसको मैं रिटर्न का। तो एड मंथ फंक्शन का क्या फंक्शनैलिटी है, सो इट्स adds the or removes the specified number of months from the given date। जो भी डेट आप उसको पास करोगे उसमें से वो क्या करेगा, माइनस करेगा। क्या माइनस करेगा, जो भी मंथ्स आप पास करोगे, या फिर ऐड करेगा जो भी मंथ्स आप उसको पास करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस एड मंथ्स फंक्शन। अब मैं एक सिनेरियो देता हूं आपको। अगर मैंने बोला कि लास्ट मंथ का मुझे डेट चाहिए, फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट मंथ, हाउ यू कैन अचीव दिस। लास्ट महीने का मुझे पहली तारीख चाहिए, रिटर्न करो मुझे। कैसे आप रिटर्न करोगे, मुझे लास्ट मंथ की पहली तारीख रिटर्न चाहिए। लास्ट मंथ की यानी कि मुझे क्या रिटर्न चाहिए, मेरा आउटपुट मुझे क्या चाहिए, 1 जुलाई मुझे रिटर्न होना चाहिए। सो हाउ कैन यू राइट अ क्वेरी। अभी इसमें आता है देखो लॉजिक, आपको ये यूजिंग दिस फंक्शन यू कैन अचीव दिस। तो आप किस तरह से फर्स्ट जुलाई रिटर्न करोगे, कैसे आप मुझे क्वेरी लिख के दोगे। ये पूछता है राइट अ क्वेरी टू फाइंड द फर्स्ट टू गेट द आउटपुट लाइक 1 जुलाई 2022, ऐसा आउटपुट मुझे चाहिए, ये क्वेरी लिखने को बोलता है। तो देखो सिंपल है, ये मैं आपको जिस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इसलिए मैं राइट लिख कर बता रहा हूँ। तो सिलेक्ट, ओके मुझे क्या चाहिए, पहले तो देखो उसने बोला कि मुझे लास्ट मंथ की 1 तारीख मुझे रिटर्न चाहिए, लास्ट मंथ की 1 तारीख। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो लास्ट मंथ में जाता हूं मैं। ओके, सिलेक्ट एड मंथ्स। ओके, मैंने आपको एक इस लास्ट डे फंक्शन नहीं पढ़ा। एक काम करते हैं, इसको इस एग्जाम्पल को लेते हैं, तो मैं बाद में पहले एक लास्ट डे करके फंक्शन ये हमारा उसको कवर कर लेते हैं, बाद में ये रिक्वायरमेंट अचीव करते हैं। तो लास्ट डे का भी उसमें एक फंक्शन का यूज है। तो लेट्स मूव टू द लास्ट डे। एक फंक्शन है हमारा, हमने ऊपर बताया था आपको, ये देखो लास्ट डे। कितने फंक्शन, ओके, सो लास्ट डे करके फंक्शन है हमारा एक, ये देखो लास्ट डे। ओके, सो लास्ट डे फंक्शन क्या करता है, हमने सो फार वी कवर्ड सिस डेट एंड एड मंथ्स। तो एड मंथ्स यू यूज टू ऐड द गिवन एड्स और रिमूव द गिवन मंथ्स फ्रॉम द गिवन डेट। जो भी डेट पास करोगे उससे एक तो आप ऐड करोगे उसमें, या फिर माइनस करोगे। तो लास्ट डे फंक्शन क्या है, इट रिटर्न द लास्ट डेट ऑफ द स्पेसिफाइड मंथ। ओके, तो लास्ट डे फंक्शन क्या करता है, जो भी डेट उसको आप पास करोगे, मान लो कि आज की डेट उसको आपने पास किया, तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा इस मंथ की आखिरी तारीख रिटर्न करेगा, लास्ट डे ऑफ द गिवन मंथ। जो भी डेट उसको आप पास करोगे, ओके, उस महीने का लास्ट वाला डे रिटर्न करेगा। तो इसका एग्जांपल आप देखोगे, सिलेक्ट लास्ट डे, लास्ट डे आज की तारीख पास कर देते हैं, सिस डेट, ओके, फ्रॉम डुअल, एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ये देखो। तो उसने क्या किया, 31 अगस्त, आपने क्या उसको क्या पास किया, कि आपने 27 अगस्त पास किया, तो उसने क्या रिटर्न किया हमें 31 अगस्त। अब 31 अगस्त क्यों किया, बिकॉज दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स ए लास्ट डे ऑफ द गिवन मंथ। जो डेट आपने उसको पास किया, आपने ये सिस डेट पास किया, तो सिस डेट पास किया मतलब आपने उसको क्या पास किया, करंट सिस्टम का डेट पास किया, और सिस्टम का करंट महीना कौन सा है, अगस्त। तो वो क्या रिटर्न करेगा आपको, अगस्त महीने का लास्ट तारीख रिटर्न करेगा ऑलवेज। अगर आप इसमें कुछ भी बात करो, अगर आपने इसमें 9वां महीना
मान लो आपने इसमें आपने इसमें पास किया 10th अक्टूबर 2020 पास किया आपने इसमें, तो वो क्या करेगा, रिटर्न 31st अक्टूबर 2022 रिटर्न करेगा अलॉन्ग विद द टाइम। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस लास्ट डे फंक्शन। तो दिस कीप इन माइंड कि लास्ट डे फंक्शन का यूज क्या है, इट ऑलवेज द रिटर्न्स द लास्ट डेट ऑफ द गिवन मंथ। जो डेट आपने उसको पास की है, तो उस डेट का जो भी महीना होगा शुरू करंट वाला, उसका लास्ट डे, उस मंथ का लास्ट डे वो रिटर्न करेगा। आपने उसको अभी इसमें पास किया 27 अगस्त 2022, तो उसने क्या किया, अगस्त महीने का लास्ट तारीख रिटर्न किया। इतना अगर उसमें आपने 26 भी पास किया होता, कल की भी डेट पास की होती, तभी भी वो आपको क्या करता, इसी महीने का लास्ट डे रिटर्न करता। सो दिस इज द यूज ऑफ लास्ट डे फंक्शन। अब नाउ लेट्स मूव टू द हमारी रिक्वायरमेंट कि मुझे क्या चाहिए, लास्ट महीने का पहला तारीख मुझे रिटर्न चाहिए, लास्ट मंथ का पहला डे मुझे रिटर्न प्रिंट करना है। हाउ कैन आई प्रिंट द लास्ट डे ऑफ, सॉरी फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मंथ, लास्ट मंथ का पहला डे मुझे प्रिंट करना है, मतलब 1 जुलाई मुझे प्रिंट करना है। तो हाउ कैन आई डू दैट, तो मैं क्या कर देता हूं, पहले तो सिलेक्ट लास्ट डे, ओके, लास्ट डे ऑफ करंट मंथ डेट, ओके, फ्रॉम डुअल। ये देखो ये क्या आ गया, 31 अगस्त 2022। अब मैंने क्या कर दिया, इस महीने का लास्ट डे निकाल लिया। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसमें से एक महीना माइनस कर लेता हूं। तो मुझे माइनस करना है तो मैं किस में चला जाऊंगा, प्रीवियस मंथ के लास्ट तारीख को चला जाऊंगा, राइट। देखो अभी क्या होगा, एड मंथ्स यूज कर लेता हूं, एड मंथ्स करता हूं, कितने महीने माइनस कर देता हूं, 1 महीना, -1 कर लेता हूं, ओके। अब क्या तारीख आई, 31 जुलाई, ओके। मेरा रिक्वायरमेंट मैं आपको ये बताता हूँ, मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे इस मंथ का फर्स्ट डे चाहिए, मैंने लास्ट मंथ का आपको बोला। तो अब ये क्या आई, 31 जुलाई। अभी मुझे क्या चाहिए, 1 अगस्त चाहिए। तो अगर मुझे फर्स्ट डे चाहिए इस मंथ का, तो क्या कर दूंगा मैं, इसमें एक दिन ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, +1, एक दिन ऐड कर दे रहा हूँ। ये देखो 1 अगस्त 2022। तो यूजिंग दीज 3 फंक्शंस मैंने क्या किया, दिस मंथ, इस महीने का फर्स्ट तारीख निकाला। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको आती है। अगर जो अभी इसके पहले भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट बोला था कि प्रीवियस मंथ का फर्स्ट डे चाहिए मुझे, तो प्रीवियस मंथ का फर्स्ट डे चाहिए, तो इट्स वेरी सिंपल। मैं ये जो डेट आई है उसमें से फिर से मैं क्या कर दूंगा, एक महीना माइनस कर देता हूँ, एड मंथ्स कर देता हूँ, एड मंथ्स, ओके दैट्स इट, एड मंथ्स। इसमें से एक दिन माइनस कर देता हूँ, -1, सॉरी एक महीना माइनस कर दिया, माइनस, ये देखो 1 जुलाई। तो ये आपको खेलना है इस तरह से कि वो मुझे इस तरह का रिक्वायरमेंट है, तो हाउ कैन आई अचीव द रिक्वायरमेंट। ये लॉजिक का है। तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि मुझे इस मंथ की फर्स्ट डेट चाहिए, तो आपने क्या किया, ओके मुझे इस मंथ का फर्स्ट डेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, आई हैव टू यूज सम फंक्शंस। तो मैंने क्या किया, ओके इस डेट का पहला डेट मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इस मंथ का लास्ट डे चला जाता हूँ। तो इस मंथ का मैंने लास्ट डे निकाला यूजिंग द लास्ट डे फंक्शन, तो 31 अगस्त आया। फिर 31 अगस्त से मैंने क्या कर दिया, एक महीना माइनस कर दिया। तो उसमें मैंने क्या यूज किया, एड मंथ फंक्शन यूज किया, जिसमें से मैंने क्या किया, -1 किया, तो वो मुझे लेके गया -1, मतलब कि 31 जुलाई को चला गया वो, राइट। 31 जुलाई आ गया फिर रिटर्न, फिर 31 जुलाई में मैं 1 ऐड कर दूंगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो फिर दूसरा महीना आ जाएगा ना, अगस्त आ जाएगा ना, तो 1 तारीख, तो अगस्त रिटर्न किया, तो उसने 1 अगस्त रिटर्न किया। फिर मैंने रिक्वायरमेंट चेंज किया कि मुझे प्रीवियस मंथ की 1 तारीख चाहिए, तो मैंने फिर उसमें से वो जो रिजल्ट आया उसमें से फिर से मैंने 1 मंथ माइनस कर दिया, एड मंथ्स कर दिया, -1। तो दिस इज हाउ अचीव द रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन अचीव द रिक्वायरमेंट। तो दिस इज नॉट ओनली वी कैन अचीव विद द डेट फंक्शंस, बट जो भी रिक्वायरमेंट आएगा, तो यही जो फंक्शन हमने सो फार लर्न किए हैं उसी का यूज हम करेंगे। और उसी फंक्शन से, ये तो हम सिस्टम ने जो फंक्शन हमें दिए हैं उनका यूज करके हम हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर रहे हैं। पर व्हाट इफ कि ये जो फंक्शन मुझे सिस्टम ने दिए हैं उससे मेरा काम नहीं बन रहा है, तो उनसे काम नहीं बन रहा, तो फिर मैं खुद का फंक्शन लिख लूंगा, नहीं हो रहा है ना उनसे, तो मैं खुद का फंक्शन लिख लूंगा। तो वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन इन ओरेकल PL/SQL। तो वहां पे हम खुद के फंक्शंस बना सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। बट फॉर द टाइम बिंग वी आर लर्निंग अ सिस्टम डिफाइंड
सिस्टम प्रोवाइडेड फंक्शन, सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ इट. तो आई होप कि आपको sysdate, add months, लास्ट डे, ये 3 फंक्शन आपको समझे होंगे. और दिस रिक्वायरमेंट एज वेल, मैंने कुछ नहीं किया, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज किया, कुछ भी नहीं किया. ये देखो, ये एड मंथ्स है, एड मंथ्स के अंदर फिर से एड मंथ्स यूज किया, फिर से उसके अंदर लास्ट डे यूज किया, और लास्ट डे के अंदर sysdate यूज किया. जिस मैंने कुछ डेटा के साथ प्ले किया हो, बाकी कुछ नहीं किया हो. मयूर, विक्की, पवन, अरुण, ये समझा आपको? है प्रियंका, अभी, हो राहुल, हो यस, नो, एनी रिस्पॉन्सेस? यस यस दिस इज वेरी सिंपल, बट वेन यू विल प्रैक्टिस, अगर आपको प्रैक्टिस आपने की तो इट्स वेरी इजी. अगर इसमें अभी और मैं टिप्स डालूंगा इसी रिक्वायरमेंट में, अगर आपको बोलूंगा कि भाई मुझे अगस्त महीने का लास्ट डे रिटर्न करो, सॉरी अगस्त नहीं, अक्टूबर मंथ का लास्ट डे मुझे चाहिए, ठीक है, 31 अगस्त मुझे रिटर्न चाहिए, तो वो भी आप इस पर थोड़ा ट्विस्ट करके डेटा को चेंज करके फंक्शन को थोड़ा ऐड मंथ्स करके ये वो करके आप कर सकते हो. तो ये आपको थिंक करके करना है. तो ये बाय प्रैक्टिस आपको आएगा कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ, उस तरह से कर सकता हूँ, क्यों ना मैं इसमें sysdate यूज़ करूँ, क्यों ना मैं इसमें लास्ट डे करूँ, ऐड मंथ्स करके 2 महीने माइनस कर दूँ, 2 महीने ऐड कर दूँ. इस तरह से आपको थोड़ा थिंक करना है. देन यू विल बी एबल टू राइट अ क्वेरी. तो ये होता है हमने सो फार sysdate, add months, last day. Now let's move to the next day function. Next day, okay, next day function, okay. This next day function, okay, again is returns the date of the, okay, it returns next occurrence of the day from the specified day based on the second parameter. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं by example. Okay, now let's take one example, then you will understand. Select next day, okay, next day. मैं इसको sysdate, आज की डेट पास कर देता हूँ, sysdate, okay, कॉमा, उसको मैं कुछ पास कर देते हैं, मंडे पास कर देते हैं. चलो, मंडे फ्रॉम 12. ओके, नेक्स्ट डे फंक्शन हम देख रहे हैं. नेक्स्ट डे, तो मैंने आपको क्या बोला, इट रिटर्न्स नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ द डे फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट बेस्ड ऑन द सेकेंड पैरामीटर. ओके, अब इसने रिटर्न किया आपको, मैं कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड. ये देखो, उसने हमें क्या रिटर्न किया, 29. अब वो क्या करेगा, हमने डेट पास किया उसको, ये देखो हमने डेट पास किया, sysdate, आज का डे, और हम उसको क्या बोल रहे हैं, what is the date of the Monday, next Monday, what is the date of next Monday from the given date. जो डेट हमने पास की है उसके बाद का जो आने वाला मंडे है उसका डेट क्या है. तो आज का डेट है 27, ओके, 27 के बाद जो भी पहला मंडे आएगा, तो 28 को संडे है, 29 को मंडे है, तो उसने क्या रिटर्न किया, 29. सो दिस इज द नेक्स्ट डे, मीन्स नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ द गिवन डे फ्रॉम द गिवन डेट. इस डेट से लेकर डेट से जो आने वाला मंडे है, जो डे है, उसका डेट वो रिटर्न करता है. सो दिस इज द यूज ऑफ नेक्स्ट डे फंक्शन. ओके, नेक्स्ट डे फंक्शन. अगर मान लो मैं इसमें क्या करता हूँ, sysdate प्लस एक और, पहले एक फंडा बता देता हूँ. जब आपको किसी डेट में कोई 1-2 दिन ऐड करना है, 3 दिन ऐड, डे तो मंथ तो हमने कैसे ऐड करना है वो मैंने आपको बता दिया, ऐड मंथ फंक्शन है उसके लिए. बट किसी डेट में आपको अगर डे ऐड करना है कि आज की 29 तारीख में आपको 2 दिन ऐड करना है, तो जैसे कि आपको sysdate में 2 दिन ऐड करना है, sysdate में 2 दिन ऐड करना है, तो इसमें आपको क्या कर सकते हो, प्लस करके 2 करोगे फ्रॉम 12, तो ये इसमें 2 दिन ऐड कर देगा. तो ये देखो 27, आज की 27 है, उसमें 2 दिन ऐड कर दिए, तो वो होगी 29. ओके, और माइनस करोगे आप तो माइनस चला जाएगा, वो -2 कर दोगे तो ये आज की 27 है तो 25 रिटर्न करेगा. सो डे ऐड करने के कुछ कोई भी डे अगर आपको ऐड करना है तो यू कैन डू दिस बाय दिस वे, देयर इज नो फंक्शन. बट अगर आपको मंथ्स करना है तो वहाँ पे आपको ऐड मंथ्स फंक्शन है. सो यूजिंग ऐड मंथ्स फंक्शन यू कैन reduce the month or you can add the month, but to add a day you don't have any function, you can directly do that. तो अगर आपको किसी भी डेट के अंदर आपको एक्स्ट्रा डे ऐड करना है या माइनस करना है, यू कैन डू दिस बाय दिस वे. ओके, सो दिस इज, अगर मैं इसको बोलता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, इसमें sysdate प्लस
2 कर देता हूँ. ओके, तो सिस डेट प्लस 2 मतलब ये मंडे ही आ जाएगा. ये मंडे पास कर रहे हैं हम उसको. ओके, तो ये अभी क्या रिटर्न करेगा हमें, अभी तो हम मंडे पे ही आएंगे. तो उसको बोला नेक्स्ट मंडे फ्रॉम दिस डेट, जो डेट मैं पास कर रहा हूँ उसके बाद का जो मंडे है वो कब आने वाला है, कौन सी डेट को आने वाला है. तो 29 के बाद आएगा वो 5 तारीख को. ओके, नेक्स्ट मंथ सितंबर 5 को आएगा मंडे. तो ये 5 रिटर्न करना चाहिए उसने. तो ये देखो 5 सितंबर को नेक्स्ट मंडे आएगा इस डेट से. सो दिस इज द नेक्स्ट डे फंक्शन. ओके, आई होप कि आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा. प्रियंका, मयूर, विकी. ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल वन. Yes, sir. नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे फंक्शन क्या करता है, इट ऑलवेज रिटर्न्स ए डेट ऑफ द गिवन डे फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट. जो भी डेट आप उसको पास करोगे उस डेट से लेकर उसका जो 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 मंथ जो डे आप उसको पास कर रहे हो उसका वो क्या करता है, डेट रिटर्न करता है. नेक्स्ट ऑकरेंस डेट, वो कब आने वाला है उसका डेट वो रिटर्न करता है. सो दिस इज द नेक्स्ट डे फंक्शन. दैट अभी द लास्ट डेट फंक्शन इज मंथ्स बिटवीन. फिफ्थ डेट फंक्शन मंथ्स बिटवीन. ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, मंथ्स बिटवीन. ओके, मंथ्स बिटवीन, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. क्या करता होगा ये फंक्शन. तो दिस फंक्शन जो दो डेट होती है, ओके, दो डेट का डिफरेंस वो रिटर्न करता है हमें. तो इट विल ऑलवेज अ नंबर, वो नंबर होता है. वो मान लो कि आज 10 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर और 10 दिसंबर के बीच का डिफरेंस कितने मंथ्स का या दिन का है. अगर 10 अक्टूबर और 10 दिसंबर इनमें 2 महीने का डिफरेंस है तो इट विल रिटर्न 2 मंथ्स. ओके, तो दिस इज द मंथ्स बिटवीन. द मंथ्स बिटवीन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स ए नंबर डेटा टाइप. ओके, नंबर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स नंबर डेटा टाइप, दैट इज रिटर्न्स नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन द टू स्पेसिफाइड डेट. जो दो डेट आप उसको पास करोगे उन दोनों में का डिफरेंस, मंथ डिफरेंस वो रिटर्न करता है आपको. जैसे कि मैंने आपको बोला कि बाबा आज की तारीख है 27 अगस्त 2022 एंड फिर से मैं बोलता हूँ 27 दिसंबर ओके 2022. इन दोनों में कितने मंथ्स का डिफरेंस है ये मुझे फाइंड आउट करके दो. तो आप क्या करोगे, माइनस कर, इन दोनों में का डिफरेंस माइनस करोगे तो दिसंबर से क्या करोगे, इस तारीख को माइनस कर दोगे. मतलब दिसंबर पे जाओगे, नवंबर, फिर आओगे अक्टूबर, सितंबर और अगस्त. तो आप बोलोगे कि 4 महीने का डिफरेंस है. डायरेक्टली यू कैन टेल 4 महीने का डिफरेंस. तो यही एक्टिविटी अगर मुझे, ये तो आपको 27 एग्जैक्ट डेट दी है इसलिए तो आपने उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके दे दिया. बट व्हाट इफ अगर ये होता, इस तरह से होता तो 12, फिर आपको कैलकुलेशन करते बैठना कितने मंथ्स का है, कितने डेज बाकी है, ये करना पड़ता. एग्जैक्टली इसलिए आपने एग्जैक्टली बता दिया 4 मंथ्स. तो अगर यही डिफरेंस अगर आपको फंक्शन से कैलकुलेट करना है तो देयर इज अ फंक्शन, डेट फंक्शन कॉल्ड मंथ्स बिटवीन. तो ये मंथ्स बिटवीन फंक्शन क्या करता है, इट एक्सेप्ट 2 पैरामीटर्स. 2 डेट एक्सेप्ट करता है ये. तो मैं क्या करूंगा, ये पहली डेट उसको पास कर दूंगा और एक दूसरी डेट पास कर दूंगा और फिर एग्जीक्यूट कर दूंगा. तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो मुझे 4 रिटर्न करेगा, बोलेगा 4 मंथ्स का डिफरेंस है भाई इन दोनों डेट्स के बीच में. सो अगेन दिस इज फंक्शन वेयर वी यूज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 डेट्स इन अ मंथ्स. तो मंथ्स में वो हमें डिफरेंस रिटर्न होता है. इसका एग्जांपल देखेंगे हम. तो मैं सिस डेट का ही ले रहा हूँ बिकॉज मैं जो भी डेट पास कर रहा हूँ मैं सिस डेट ही पास कर रहा हूँ. मैं खुद ऐसे कुछ डेट लिख के नहीं डाल रहा हूँ, सिस डेट डाल रहा हूँ क्योंकि सिस डेट होता है ओरेकल डेट फॉर्मेट में. तो इसलिए वो समझ जाता है उसको. मैं खुद का डेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट मुझे उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए 2 कैर और 2 डेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा. तो मैंने आपको 2 कैर और 2 डेट फंक्शन पढ़ाया नहीं. तो जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो ये जो सारे एग्जाम्पल हमने अभी लिए हैं वो एग्जाम्पल को हम रिप्लेस करेंगे, हम जो खुद डेट पास करेंगे उससे करेंगे. तो हम ये फिर से आइटरेट करने वाले हैं. बट टू मेक यू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस फंक्शंस आई एम जस्ट यूजिंग अ सिस डेट. पर बाद में हम खुद की डेट पास करेंगे. सिस्टम का डेटा नहीं लेंगे, डेट नहीं लेंगे, हम दूसरा खुद डेट पास करेंगे. उससे हम एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, तो एडवांस अभी क्या करते हैं, हम एक डेट ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. सिलेक्ट मंथ्स बिटवीन ओके, इसको 2 डेट पास करनी. तो पहले मैं डेट पास कर देता हूँ सिस डेट पास किया पहला डेट. तो मैंने
अब दूसरा मैं उसका डेट पास कर देता हूँ, एक कर देता हूँ, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल पास कर देता हूँ 2022, 1 अप्रैल 2022 कर देते हैं, या फिर अप्रैल महीना पास कर देते हैं। ओके, तो 27 अप्रैल पास कर देते हैं। चलो, तो हम क्या कर देते हैं, ऐड मंथ्स, अप्रैल महीने में चले जाते हैं, ऐड मंथ्स, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐड मंथ्स, इसको सिस डेट पास कर रहा हूँ, कॉमा, आप ये चल रहा है अगस्त, तो 4 ही महीने मुझे पीछे जाना है, तो -4 कर देता हूँ, 4 कर दिया। ओके, मंथ बिटवीन सिस डेट ऐड मंथ्स 4। ओके, ये पहला डेट हो गया, ये मेरा, ओके, ओके, फ्रॉम वेल, लेट्स एग्जीक्यूट। ये देखो 4 महीने, 27, ये तारीख क्या हो गई आपकी, एड मंथ्स किया मैंने, एड मंथ्स 6 - 4 किया, इसका माइनस क्या हो गया, ये इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, 27 अप्रैल आएगा ना। इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये 27 अप्रैल हो गया, और ये क्या है आपकी 27 अगस्त, तो 27 अगस्त से क्या माइनस हो जाएगा, 27 अप्रैल माइनस हो जाएगा, तो कितने मंथ्स का डिफरेंस आएगा, 4 महीने का। तो यही फंक्शनलिटी है इस मंथ्स बिटवीन फंक्शन का। तो मंथ्स बिटवीन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ नंबर टाइप डेटा, नंबर डेटा टाइप, और वो क्या करता है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द 2 डेट्स, 2 डेट्स में का डिफरेंस वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है। So this is the months between functions. So this is how we covered all the 5 date functions. Okay, date function हमने कवर किए। ये समझा क्या मंथ्स बिटवीन फंक्शन क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है? क्या जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तो ये क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ना उसको, क्या मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो क्या बाउंसर जा रहा है, आई डोंट थिंक सो, but I'm putting 100% effort, so you have to put 200%, then you will understand definitely, otherwise you will not understand। और आपको प्रैक्टिस भी करना है, तो जब तक कि आप हर एक फंक्शन की फंक्शनलिटी आपको पता नहीं होगी तो यू कैन नॉट यूज इट, क्योंकि आपको जब तक उसकी फंक्शनलिटी ही पता नहीं होगी तो आप कैसे अचीव करोगे कोई रिक्वायरमेंट को। सो आपको ये अच्छी तरीके से कर लो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, आई होप कि आपको ये समझा होगा। ओके, हो नितिन। ओके, सो टुडे वी स्टॉप फॉर द डे। मैं आज ही आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, थोड़ी देर बाद 4-5 बजे के अलाउंग, और कुछ एग्जांपल देता हूँ। ओके, उसमें आपको सिस डेट ही यूज़ करना है, कुछ नहीं यूज़ करना है, सिस डेट ही यूज़ करना है, बिकॉज मैंने आपको टू कैर और टू डेट फंक्शन नहीं पढ़ाया है कि कैसे हम खुद की डेट पास करेंगे। ओके, तो वो कल हम पढ़ेंगे। तो कल हम डेट और ये फंक्शंस तो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो स्पेशल टाइप के फंक्शन है वो आपको मैं कल बता के हम जॉइंस पढ़ेंगे, फिर कल जॉइंस पढ़ेंगे, और हमारा फिर एसक्यूएल हम अच्छे से बेस हमारा हो जाएगा। फिर बड़े बड़े जो टॉपिक है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं फिर, क्योंकि बेसिक जो होता है वही मेन होता है। तो वो एक बार हो गया मेरा, अभी मैंने जितना आपका बेस तैयार करके लेना था वो तो हो गया ऑलमोस्ट। सिर्फ अभी मुझको आपको बड़े बड़े टॉपिक पढ़ाना है, दैट्स इट। तो हार्डली टेक्स ओनली 3-4 लेक्चर टू कंप्लीट योर एसक्यूएल। तो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ, इज कंप्लीट इट बाय टुडे इटसेल्फ।